What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. And today is Tuesday, 30th of June. And today was the weekly, monthly, quarterly and half yearly expiry. So today is the quadruple witching kind of a day. And the expiry definitely didn't disappoint all the volatility lovers. Today was hugely volatile kind of an expiry. If you look at the days range, सिर्फ 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट फंसा रहा. But मार्केट्स सीलिंग एंड फ्लोर को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया विथ विगरस रैंडम स्पाइक्स विच स्पाइक द ऑप्शंस बाय ऑलमोस्ट 6, 7, 8 times in a span of few minutes. So throughout the day the markets did multiple U-turns, and if you can notice in the chart here, you can notice how spiky and how mean reverting the expiry was, and this spiky nature continued even till the end of the day, even after 3 o'clock. So the straddle opened at 120, slightly higher than what I expected. I was expecting somewhere around 110, but 120 के आसपास ओपन हुआ. But as the market started to slide and when the markets broke 24,000 level, there was a sharp increase in the straddle. 120 से straddle 140 तक spike हुआ, and within the first 30 minutes itself the market slid down almost 160 points, almost 24,020 से 23,850, 860 levels के आसपास markets आ गया था. And from there the market slowly started to recover. But then at 11 o'clock there was a sharp random candle which spiked till 24,000 levels, and it blasted the calls almost by 10 times. And from there the markets again hit the day's low, and again somewhere around 2:30 there was again a spike towards the call side, and finally at 3 o'clock the final nail in the coffin for all the expiry day option writers, and there was a massive spike towards the put side. So multiple times the options went 6, 7, 8 times, and it was a hell for the option writers. And हमने कल के वीडियो में ये सिनेरियो डिस्कस किए थे. वी डिस्कस दैट 24,000 लेवल विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट, बट 24,000 प्लस और माइनस 50 का एक्सपायरी नहीं हो सकता है, बट रैदर 150 to 200 पॉइंट का रेंज में मार्केट घूम सकता है. ये एग्जैक्ट लाइन मैंने यूज़ किया था. सो लेट मी नो अगर कल के एनालिसिस आपके लिए कुछ हेल्प किया रहेगा. बट अगेन टुडे ऑल्सो was one of the brutal expiries, and finally the brutal quarter has ended. And yeah, personally speaking, I took a 0.1% loss. Of course not a big deal, but again I wasn't expecting that down move towards the end of the day, because I was expecting the markets would gravitate towards 24,000 levels, but I got stuck in one wrong entry. I did a lot of things correctly throughout the day, but one wrong move is all it takes in the current expiry regime to actually get punished really bad. So all that said, tomorrow is going to be a fresh month, it's going to be a fresh quarter, and premiums इतना ज़्यादा है नहीं, and markets are dilly-dallying around 24,000 levels. आज भी 24,000 के ऊपर markets close नहीं दे पाया. Of course 24,000 के ऊपर ज़रूर open दिया, but finally close कहीं ना कहीं 23,850 के आसपास दिया है, which is kind of concerning. So let's get to the terminal and let's see what the market has in store for us for tomorrow. So indeed a volatile expiry. अगर मैं expiry के बारे में ज़्यादा बात करूँ तो ऐसे लगेगा कि मैं क्रिप कर रहा हूँ, बट इट इज़ वॉट इट इज़. 120 रुपीज़ का स्ट्रैडल ओपन हुआ था, एंड विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स मार्केट्स 120 पॉइंट्स मूव कर दिया, एंड एट दिस पॉइंट द स्ट्रैडल वाज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 100 रुपीज़, एंड रैंडम 120 पॉइंट का अप मूव, एंड देन रैंडम 100 पॉइंट का डाउन मूव, एंड दिस वाज द प्लेस वेयर द मार्केट्स काइंड ऑफ वेंट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन. ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे विकिंग हुई है, एंड व्हेन आई से कंसोलिडेशन, प्रीमियम सिर्फ डबल ही हुए. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑफ कोर्स द कॉल्स डबल्ड, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑफ कोर्स द पुट्स डबल्ड, एंड यहाँ पे भी फिर से कॉल्स डबल हो गए. एंड व्हेन दिस ब्रेकडाउन हैपेंड अगेन द पुट्स वेंट अप मल्टीपल फोल्ड्स, एंड यहाँ पे फिर से एक रैंडम अपमूव का कैंडल almost 100 points का it again candle when the straddle itself was trading around somewhere around 60-65 rupees, and from there another 120 points का एक random candle and another 100 points का एक up move. So the market was haywire, it was choppy, and choppy is basically an understatement. यहाँ पे multiple times यहाँ पे calls almost 6-7 गुना हो गए, यहाँ पे puts 6-7 गुना हो गए, and यहाँ पे तो 1:2 times तो हो ही रहा था calls and puts, and यहाँ पे फिर से calls almost OTM calls
10 times चले गए एंड यहाँ पे पुट्स अगेन दे वेंट ऑलमोस्ट 10-15 टाइम्स. सो इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस एंड येस वी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इट. दैट इज वाई मेरा जो हिट है वो भी छोटा है, वरना लाइक बड़ा हिट हो सकता था. एंड व्हेन आई सॉ ट्विटर फीड लॉट ऑफ पीपल टुक मैसिव हिट टुडे एंड या हमने डिस्कस किए थे कि 24,000 के आसपास मार्केट एक्सपायर कर सकता है, बट इट्स गोना बी ह्यूजली वोलेटाइल. बट इतना वोलेटाइल होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज वन टाइम पुट राइटर्स को ऑलरेडी तकलीफ दे दिया एंड देन फिर से कॉल राइटर्स को तकलीफ दे दिया. एंड व्हेन द मार्केट्स वेंट इनटू दिस कंसोलिडेशन मोड, आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स 24,000, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया तो लाइक आई हैड टू स्विच माई बायस. एंड देन दिस कैंडल अगेन कॉट मी ऑफ गार्ड एंड फाइनली 3 o'clock का जो कैंडल है, इट वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. देयर वॉज नो वे दैट आई कुड बी क्लोजिंग इन ग्रीन टुडे. अगर ग्रीन में क्लोज किया है, well done, you must have done something really well, because you might be like, let's say दिन में ऑलमोस्ट 10 बार मार्केट आपको ट्रैप करने को ट्राई करेगा एंड आपने 8 बार भी आपने ट्रैप को अच्छे से एस्केप कर लिए एंड सिर्फ 2 बार भी आप ट्रैप में फंस जाओगे. दिस करंट एक्सपायरी रिजीम इज सो ब्रूटल दैट doing 8 things well and not doing 2 things will put you in a deep red mark to market. So that's how unforgiving the current regime is. And yeah, all that said, enough of the cribbing, and tomorrow fresh month, fresh quarter, whatever. And Sensex को straddle 670 rupees पे close हुआ है. You can notice that there was a significant spike in the straddle as well, because 24,000 levels के नीचे markets फिर से trade करना शुरू कर दिया था and there was almost 840 rupees के आसपास straddle trade कर रहा था and almost 200 पॉइंट्स का एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रश देखने को मिला है. बट ऑफ कोर्स इट वाज विद इट्स ओन डेल्टा मूव्स ऑलमोस्ट. अगर मार्केट निफ्टी 150-200 पॉइंट्स के बीच मूव कर रहा है तो डेफिनेटली सेंसेक्स 500 to 550 पॉइंट्स के बीच डेफिनेटली मूव किया होगा. ठीक है. सो अगेन टुमारो 600 के आसपास स्ट्रैडल खुल सकता है एंड प्रोबेबली 450 इज माय बेस्ट गेस. 450 to 470 के बीच स्ट्रैडल क्लोज होने का चांसेस है. बट अगेन अगर मार्केट फिर से कल गैप डाउन खुलेगा एंड 23,800 को तोड़ देगा तो देन प्रोबेबली एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी एंड वहां पे थोड़ा बहुत रीप्राइसिंग होने का चांसेस ज्यादा है. सो लेट मी गो टू द 5-minute टाइम फ्रेम हियर एंड लेट्स सी इफ यू गॉट एनी ट्रेड्स फॉर टुमारो. तो वन थिंग इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक दिस इज अ सपोर्ट लेवल. यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है एंड अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, दैट इज 76,500 और 76,500 के ऊपर कहीं पे भी खुलता है, तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू डिप टू दिस लेवल. एंड यहाँ पे हम लोग वी डोंट इवन हैव टू वेट फॉर द पैटर्न हियर. अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो इस लेवल पे ही हम लोग 1:1 रिस्क रिवॉर्ड वाला एक बुल पुट स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. ऐसे एक बुल पुट स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड मार्केट अगर बाउंस हो जाता है तो देन वी कैन कैरी दिस बुल पुट स्प्रेड टुवर्ड्स द एक्सपायरी एज वेल. ठीक है. अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेट्स से इफ द मार्केट ओपन्स विद अ बिग गैप अप, देन थोड़ा सिचुएशन ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज वोलेटिलिटी माइट कंटिन्यू, बिकॉज आपको एक अच्छा वाला ट्रेड्स भी नहीं मिल सकता है एंड ऑफ कोर्स नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स भी आप नहीं ले सकते. तो बेसिकली आई बी वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल. ये जो लेवल है 77,700 लेवल, 77,700 लेवल्स के लिए मैं वेट करूंगा एंड नीचे 76,400 लेवल्स के लिए मैं वेट करूंगा. इस रीजन के अंदर मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, बिकॉज अगर आप कल का जो अगर निफ्टी का 1DT अगर याद करोगे तो यू नोटिस दैट देयर वाज अ चॉपीनेस इन द स्ट्रैडल प्रीमियम. एक लीनियर काइंड ऑफ अ डीके नहीं दिया था. ऑफ कोर्स लास्ट 2-3 1DTs पे एक लीनियर काइंड ऑफ अ डीके था एंड ऑफ कोर्स तो जो डेल्टा मूव्स आ रहे थे, यस, जो डेल्टा मूव्स में आप डेल्टा हेजिंग करते थे वो थोड़ा कुशन दे रहा था दिस वॉलिटिलिटी क्रश और टीटा डीके, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट. बट कल के एक्सपायरी में, आई मीन कल के जो 1DT में यू कुड नोटिस दैट द मार्केट्स गेव अ लॉट ऑफ मूव्स, रैंडम मूव्स, बट उसके साथ साथ देयर वाज एक्चुअली स्पाइक इन द स्ट्रैडल. तो कल भी वो सिनेरियो हो सकता है. अगर 570 के नीचे अगर स्ट्रैडल खुलता है तो डेफिनेटली डोंट इवन बॉदर ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनली, वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू द लेवल्स. ठीक है. कल मैं ट्रेंड फॉलोइंग वाला ट्रेड में प्लान नहीं करने वाला हूं, बिकॉज यू कुड नोटिस दैट लाइक मल्टीपल जगह पे हम लोगों को एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स है, मल्टीपल जगह पे रेजिस्टेंस है मार्केट्स जो फेस करेगा. तो मार्केट्स को डिफिकल्ट होगा कल ब्रेकआउट करके एक ट्रेंड देना. तो टुमारो आई एम मोस्टली एक्सपेक्टिंग अ वोलेटाइल डे, मतलब मीन रिवर्टिंग काइंड ऑफ अ डे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. दैट इज वाई कल के लिए मेरा सिर्फ 2 ही प्लान है. अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो देन वेट फॉर समवेयर अराउंड 77,700 लेवल्स. 77,700 लेवल्स के लिए वेट करो एंड यहाँ पे एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट करो. एंड यहाँ पे अगर मार्केट 76
1000 के आसपास आता है, दैट इज अगर मार्केट यहां पे खोल देता है तो देन 76,000 के आसपास हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो देन आज के लो के आसपास ही हम इनिशिएट कर सकते हैं मीन रिवर्शन ट्रेड। तो यहां पे मीन रिवर्शन ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे तो जो ट्रेड स्ट्रक्चर है वो बुल पुट स्प्रेड होना चाहिए। एंड जो नेगेशन पॉइंट है, हमारा जो ट्रेड हाइपोथेसिस का नेगेशन पॉइंट है वो ये है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं देगा, एक 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं देगा, हमको उस ट्रेड को होल्ड करना है। जैसे इसके नीचे क्लोज दे देगा, वी हैव टू क्लोज दिस एंड वी हैव टू गो होम। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो आई एम नॉट गोना बी गोइंग शॉर्ट। अगर इसके नीचे शॉर्ट जाना है तो बेसिकली मार्केट्स यहां पे खुलना चाहिए। तो मार्केट्स इंट्राडे में 400 to 500 पॉइंट्स अगर ट्रैवल करके इस लेवल के आसपास आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन। बट मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है, लेट्स से 76,600 के आसपास आज क्लोज हुआ है, तो लेट्स से 76,200 या 76,200 के नीचे मार्केट इस बैंड में खुलता है एंड देन 10 o'clock के पहले यहां पे ब्रेकडाउन देता है, तो देन आई कैन प्लान ऑन गोइंग फॉर अ ब्रेकडाउन काइंड ऑफ अ ट्रेड। बट ब्रेकडाउन ट्रेड अगर लेता हूं तो भी मेरा जो टारगेट है वो 1:1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहां पे एक गैप है एंड एक गैप फिल होके मार्केट रिवर्ट करने का चांसेस ज्यादा है, यहां पे आप देख सकते हैं। सो अगर ये अगर ब्रीच भी करता है तो देन मैं जनरली 1:1 पे मैं बुक करने को पसंद करता हूं एंड देन आई लुक फॉर द पैटर्न्स फॉर द मार्केट्स टू मीन रिवर्ट फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट स्टे लाइट टुमारो बिकॉज फ्रेश क्वार्टर है एंड यू कैन नोटिस दैट मार्केट्स आर ऑल्सो अगेन कमिंग बैक फ्रॉम 24,000 लेवल्स। 24,000 लेवल्स के आसपास मल्टीपल टाइम्स काफी हेवी सेलिंग आई है। आज भी मार्केट्स 24,000 लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुए हैं एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया विक्स स्टिल ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 13.5 लेवल्स। सो लेट्स वेट फॉर द इंडिया विक्स टू डिसाइसिवली ट्रेड अराउंड 12 और बिलो 12 एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा प्राइस एक्शन ट्रेड्स को एंड ब्रेकआउट्स को थोड़ा हम लोग ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, लोअर विक्स में ब्रेकआउट्स जो सस्टेन होता है उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है एंड जैसे जैसे विक्स बढ़ता जाता है वहां पे क्या होता है, मार्केट ज्यादा वीकी बन जाता है, मार्केट ज्यादा मीन रिवर्टिंग बन जाता है, वहां पे कंटिन्यूअसली मार्केट्स रिवर्ट करेगा। यू कैन नोटिस दिस ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। आप जाके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं लास्ट 3 महीने में कितने बार मार्केट ने एक वी शेप, एम शेप, डब्ल्यू शेप काइंड ऑफ अ मूव दिया है वर्सेस आप देखो फरवरी के पहले, लेट्स से अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में लास्ट ये 5-6 महीने में आपको कितनी बार ये मल्टीपल टाइम्स रिवर्शन मूव्स मिला होगा। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपका कैसा रहा। आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज मार्केट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.